Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and I provide sessions related to IELTS regularly on my YouTube channel. You can also get benefited by watching various lessons on writing task 2, that too already available on my YouTube channel IELTS Made Easy. Guys, in this session I'll discuss how WhatsApp can help in your IELTS preparation. I know many of you would say, ma'am, WhatsApp, how can it help us? Because I have been devoting 2 to 3 hours a day, 4 hours a day on WhatsApp, but I am not at all improving. So what do we need to do for this? So guys, यही मैं explain करने वाली हूँ आपको डिटेल में. अगर आप Google कभी भी करोगे, सर्च करोगे, you will get to know one thing कि easily US में 18 to 30 years के between जो adults हैं, they are devoting somewhere around 3 to 4 hours a day on browsing WhatsApp. Similar is the case with us, with the Indians, because we are also spending a lot of time on WhatsApp. But how can it help us, guys? WhatsApp में the English we are using, first of all try to understand why you are not getting benefited, what is the problem. So first of all जो पहली problem है वो ये है कि through WhatsApp whenever you are communicating with someone in English, what you are doing, you are just chatting and that too you are doing in English. कुछ भी होता है इंग्लिश में लिखते हो, what are you doing. So आप लिखोगे, अगर या तो आप ऐसे लिखोगे what single R, ठीक है, you में you will not write correct spelling, you are going to use abbreviations or you will use contractions which is not a good thing. ठीक है. Secondly, जब आप WhatsApp पे communicate कर रहे हो, you are using your mother tongue, you are using हिंदी as well. ठीक है, simple words जो है वो हिंदी में लिख देते हो. क्या कर रही है, ठीक है. सो और या फिर आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हो, कोई बात कर रहे हो, ओके, हैव यू टेकन दिस. सो अगर हमने कुछ भी बात करनी है तो आधी हिंदी आधी इंग्लिश, क्या ये कर लिया, हैव यू डन दिस, ठीक है. सो स्टिल कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आपको. सो व्हाट आई सजेस्ट कि एक तो ये दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. एंड मोर ओवर जब आप व्हाट्सएप पे ऐसा करते हो एंड व्हेन यू आर राइटिंग एसे, तब भी आप यही सेम मिस्टेक्स करते हो. वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हो जो कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शंस हैं भी नहीं. वी कैनॉट राइट ओनली यू फॉर YOU. वी कैनॉट राइट ओनली R फॉर ARER. So we need to be careful. We cannot write I in small letter or lowercase letter because it is always written in uppercase letter. So I have to take care of all of these. Now देखो, practically speaking, जितना टाइम आप WhatsApp पे लगा रहे हो उतना ही टाइम आप डेली मैक्सिमम उतना ही टाइम आप अपने IELTS प्रिपरेशन पे दे रहे हो. सो इट इज़ इक्विवेलेंट. अगर आप यही टाइम को यूटिलाइज कर लोगे, यू विल गेट टू नो दैट यू आर राइटिंग एसेज इन अ बेटर मैनर, you will start writing letters in a better manner. Moreover, your sentence structure is going to be improving. You will get to know this. It is improving. ठीक है? It is going to get improved as well. So now what are you going to do for this? देखो, अभी तो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं. फर्स्ट सॉल्यूशन इज दिस. जब भी आप व्हाट्सएप के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हो या व्हाट्सएप के थ्रू इफ यू वांट टू प्रिपेयर, सो व्हाट यू कैन डू, व्हेनेवर यू आर राइटिंग सम मैसेज टू समवन, किसी को भी, बी इट योर फ्रेंड, रिलेटिव, योर बॉयफ्रेंड, योर हस्बैंड, जिसको भी मैसेज कर रहे हो, मेक इट अ पॉइंट यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट इन नॉर्मल इंग्लिश ओनली, प्रॉपर इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश, बिकॉज IELTS is a formal exam and in this we use formal language only. We cannot use informal language. So हमेशा formal में I लिखना है तो capital लिखो. Do not use unnecessary contractions. Try to use proper language. Make complex sentences. तो मैं क्या करती हूँ, if you like, obviously you will not get a chance to do this, but usually मेरे फ़ोन में मेरे husband भी, he also makes fun of me for this thing, कि जब मैं WhatsApp पे भी चैट कर रही हूँगी ना, तो मैं चैट ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं कोई लेटर लिख रही हूँ. चैट ऐसे करूँगी जैसे मैं किसी से फॉर्मली बात कर रही हूँ. सो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दिस हैपेंड, हाउएवर दिस, आई एम गोइंग टू यूज सेमीकोलन एज वेल इन बिटवीन. मुझे ये होता है कि यार मैं अगर किसी को इंग्लिश में लिख के भेज रही हूँ तो उसे मतलब प्रॉपरली लिख के भेजूँ और पता चले कि आई एम एन एजुकेटर. पता चलना चाहिए कि मैं एक इंग्लिश एजुकेटर हूँ, पता चलना चाहिए आई ट्रेन स्टूडेंट्स ऑन IELTS. So I take care of this, and for this what do? I never use informal language. I always use formal language. I try to use complex sentences as much as possible, and this is helping me a lot.
नाउ एक और फीचर होता है व्हाट्सएप में एंड दैट फीचर इज वॉइस मैसेज। अब आप किसी को भी वॉइस मैसेज भेज सकते हो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, एट टाइम्स आई इवन फॉरगेट टू रिप्लाई टू द स्टेटस। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग द स्टेटसेस ऑफ my friends and family members. I will watch it but I'll forget to reply to it, okay, or I'll forget to appreciate something like such. So what I do for this, to get rid of this habit, I have started sending voice messages to my friends, family members, even to my educators, to my employees, to my team. So what do I do for that? मैं वॉइस मैसेज भी भेजूंगी तो भी प्रॉपर इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही। अगर कुछ गलत होगा तो मैं दोबारा भेजूंगी। आई टेक केयर ऑफ दिस, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो नाउ आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग, व्हाट्सएप को खाली यूज मैसेजेस के लिए मत करो, यूज इट फॉर वॉइस मैसेजेस एज वेल, ओके। सो वॉइस मैसेजेस में भी जब भी भेज रहे हो तो इंग्लिश में बोलो, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, अगर आपको लगता भी है कोई मजाक उड़ा रहा है तो डजेंट मैटर एट ऑल यार, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई मजाक भी उड़ा रहा है। बस आप फोकस करो कि आपकी प्रिपरेशन बेटर हो। प्रिपरेशन बेटर कैसे होगी? अगर आप वॉइस मैसेजेस जो फॉर्मल भी भेज रहे हो वो भी वॉइस के थ्रू प्रॉपरली बोल के भेजो। हर एक चीज प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए और उसी तरीके से बोलो, वो आपको हेल्प करेगा। सेकेंडली, इसके अलावा आप एक और चीज करोगे कि वॉइस मैसेज तो करोगे, जो मैसेज पे लिख रहे हो वो भी आइल्स का पैटर्न ही यूज करो। मतलब बस सोचो कि अगर मैं 2 घंटे व्हाट्सएप पे भी हूँ तो वो भी मैंने इसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो। तो सिंपली स्पीकिंग थ्रू आउट द डे आपके माइंड में चलना चाहिए आइल्स 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 एंड द फोकस इज क्लियर। आई एम श्योर यू विल इंप्रूव लाइक दिस, ओके। So I would say that's all for today. आप ये 3 आवर्स इस तरीके से यूटिलाइज करने शुरू करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है या नहीं। अभी जस्ट मेरे से बात करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, आई सजेस्ट यू टू यूज व्हाट्सएप बट इन द मैनर आई हैव टोल्ड यू। सो स्टार्ट यूजिंग व्हाट्सएप as often as possible, but use it in a manner that it helps you in your IELTS preparation. So that's all guys. Thank you so much for watching me today. I'll meet you again with the next video of mine. Do switch on the bell notification so that you get to know about my new videos. Thank you so much. Bye bye.